کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یورپ، جہاں چرچ کی گھنٹیوں کی آوازیں صدیوں سے گونجتی آئی ہیں، وہاں آج اذان کی روح پرور آواز بھی سنائی دے گی؟ کہاں صحرائے عرب کی گرمی، کہاں برصغیر کی سرسبز وادیاں، اور کہاں اسکینڈینیویا کی برف پوش زمینیں۔ مگر جب اللہ کی محبت دل میں جاگزین ہو جائے تو فاصلوں کی دیوار گر جاتی ہے اور ایمان ہر خطے میں اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ڈنمارک کے ان مسلمانوں کی، جو نہ صرف یہاں کی سرزمین پر آباد ہو چکے ہیں بلکہ اپنی اسلامی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے ایمان کی روشنی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ڈنمارک کے دیہاتوں میں اسلامی تہوار منائے جاتے ہیں، انہیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسے ہر مشکل کے باوجود یہ مسلمان اپنے دین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو چلتے ہیں ڈنمارک کے مسلم دیہاتوں اور شہروں کی زندگی میں، جہاں ایمان کی روشنی سرد ہواؤں میں بھی اپنا چراغ جلائے رکھتی ہے۔ ڈنمارک شمالی یورپ کا ایک ملک ہے جو جزیرہ نما جٹ لینڈ اور 400 سے زیادہ جزیروں پر مشتمل ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 43,090 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 60 لاکھ کے قریب ہے۔ ڈنمارک، جو دنیا میں اپنے فلاحی نظام، آزادی خیالی اور خوبصورت دیہی علاقوں کے لیے جانا جاتا ہے، کبھی ایک مکمل غیر مسلم معاشرہ تھا، لیکن آج یہاں ہزاروں مسلمان بستے ہیں اور ان میں سے کئی نے دیہاتوں کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ لیکن یہ سب کب اور کیسے ہوا؟ یہ سب 1960 کی دہائی میں شروع ہوا، جب ترکی، پاکستان، مراکش اور مشرق وسطیٰ سے مزدور بہتر روزگار کی تلاش میں ڈنمارک پہنچے۔ ابتدا میں وہ بڑے شہروں تک محدود رہے، مگر جیسے جیسے ان کی نسلیں پروان چڑھیں، کئی خاندانوں نے دیہی زندگی کو اختیار کر لیا۔ 1990 کی دہائی میں جب بوسنیا اور کوسوو سے مہاجرین یہاں آئے تو وہ بھی دیہاتوں میں جا بسے، کیونکہ انہیں شہر کی چکا چوند کی بجائے سکون اور قدرتی ماحول زیادہ پسند تھا۔ آج ان دیہاتوں میں اسلامی ثقافت کے آثار واضح نظر آتے ہیں، اور آج ڈنمارک میں تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، جو کہ ڈنمارک کی آبادی کا 5% بنتا ہے۔ ڈنمارک کے مختلف دیہی علاقوں میں مسلمان اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں کھیتوں میں کام کرنے والے کسان حلال فوڈ جیسے گائیں، بھینس اور بکریوں کی ڈیری فارمنگ کے بزنس کرنے والے تاجر اور اسلامی تعلیم دینے والے استادہ یہاں نظر آتے ہیں۔ دوسرے یورپین ممالک کی طرح ڈنمارک میں بھی مسلمانوں کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، چاہے وہ شہروں میں ہو یا گاؤں میں، جن میں سے سب سے بڑا مسئلہ اسلاموفوبیا ہے۔ اور اس ویڈیو کی ریسرچ کے دوران میں جتنا ہرٹ ہوا ہوں، شاید ہی وہ میں الفاظوں میں بیان کر پاؤں۔ جو بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، اس سے بھی کئی ہزار گنا زیادہ بے حرمتی اور اسلاموفوبیا ڈنمارک میں ہے، جو سو کولڈ آزادی رائے کے نام پر ہے۔ یعنی کہ آپ سو کولڈ آزادی رائے کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، جو کہ اس ویڈیو کی ریسرچ کے دوران اتفاقاً میں نے دیکھ لی اور اسے دوبارہ بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ بس اپنے دل پر پہاڑ جتنا پتھر رکھ کر آپ کو یہاں کے لوگوں کی سوچ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ایک انسان قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے اور ایک دلیر عورت نے اسے روکا اور قرآن کو اس سے لے کر بھاگی، لیکن راستے میں ہی وہاں کی پولیس نے اس عورت کو پکڑا اور قرآن دوبارہ سے اس انسان کو پکڑا دیا کہ نعوذ باللہ وہ اس کی دوبارہ بے حرمتی کر سکے۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، یہ لوگ نفرت میں کتنے آگے جا چکے ہیں، دنیا جہان کے کام چھوڑ کر سارا دن ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ جولائی 2023 میں ایک انتہا پسند گروہ ڈینش پیٹر یارس کے اراکین نے کوپن ہیگن میں ایرانی اور عراقی سفارت خانوں کے سامنے قرآن کے نسخے نظر آتش کیے۔ یہ گروہ اپنی اسلام مخالف سرگرمیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ مئی 2018 میں ڈنمارک حکومت نے عوامی مقامات پر چہرہ ڈھانپنے پر پابندی عائد کی، جسے وزیر انصاف نے ڈینش معاشرے کی اقتدار کے منافی قرار دیا۔
अगस्त 2018 में एक 28 साल खतून को नकाब पहनने पर जुर्माना किया गया। इस वाक़ये के दौरान एक दूसरी खतून ने इसका नकाब उतारने की कोशिश की, जिससे झगड़ा हुआ। ये वाक़या इस खदशे को ज़ाहिर करता है कि ये कानून इस्लामोफोबिक हमलों को हवा दे सकता है। डेनमार्क की नेशनल पुलिस की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मजबूरी तौर पर 521 नफरत अंगेज जुराइम रिपोर्ट हुए, इनमें से 165 मजहबी बुनियादों पर थे और इनमें से भी 63 वाक़यात ख़ास तौर पर इस्लाम से मुतल्लक थे। 2005 में डेनमार्क के एक अखबार में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आकों की अशात के बाद से मीडिया में मुसलमानों के खिलाफ मनफी रवैये की मिसालें मिलती हैं। तहकीकात से पता चलता है कि मुसलमानों को मीडिया में गैर मुनसिफाना और इस्लामोफोबिक कवरेज का सामना करना पड़ता है। डेनमार्क की हुकूमत ने 2018 में वीटो पैकेज मुतारफ़ करवाया, जिसका मकसद अक़लीती आबादी वाले इलाकों में समाजी मकानात को मिसमार करके बशिंदों को मुंतशिर करना था। और अक़लीती आबादी का मतलब मुसलमान है जो कि दूसरे ममालिक से हैं। यूरोपीय यूनियन की एजेंसी बराए बुनियादी हकूक़ की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप भर में मुसलमानों के खिलाफ नस्ल परस्ती पर और इम्तियाजी सलूक में इजाफा हुआ है। 43% तक मुसलमानों ने पिछले 5 सालों में इम्तियाजी सलूक का सामना किया है। ये इजाफा जुज़वी तौर पर मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात और इस्लाम मुखालिफ बयानिए से मंसूब किया गया है। ये वाक़यात और रिपोर्ट्स डेनमार्क में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान की निशानदही करते हैं, जो मुसलमानों की ज़िंदगी पर मनफी असरात डालते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम डेनमार्क में बाकी रहेगा? इसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि डेनमार्क में नई मसाजिद और इस्लामी मराकज़ में इजाफा हो रहा है। नई नस्ल इस्लामी तालीम के साथ जदीद तालीम भी हासिल कर रही है। मुसलमान सियासत, कारोबार और तालीम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रमज़ान, ईद और दीगर इस्लामी तकरीबात पूरे जोशो खरोश से मनाई जाती हैं। डेनमार्क के ये मुस्लिम सिर्फ चंद घरों और मस्जिदों का मजमुआ नहीं, बल्कि ये एक नई इस्लामी शनाख्त की अलामत है। और बहुत से डेनमार्क के लोग भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और इससे अच्छा जवाब उन लोगों के लिए क्या हो सकता है जो मजहब इस्लाम से शदीद हद तक नफरत करते हैं। यहाँ की मशहूर मसाजिद और कम्युनिटी सेंटर में कोपनहेगन की मरकज़ी मस्जिद ये डेनमार्क की सबसे बड़ी और अहम मस्जिदों में से एक है, जो कोपनहेगन में वाक़या है। यहाँ नमाज जुमा, दीनी लेक्चर्स और दीगर इस्लामी तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। मस्जिद अल फुरकान ये मस्जिद सुन्नी मुसलमानों की एक बड़ी इबादत गाह है। इमाम अली मस्जिद कोपनहेगन में वाक़या ये मस्जिद शिया मुसलमानों की मरकज़ी इबादत गाह है। मिनहाजुल कुरान मरकज़ कोपनहेगन में वाक़या ये मरकज़ तहरीक मिनहाजुल कुरान का हेडक्वार्टर है, जहाँ मिनहाज यूथ लीग और मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग समेत बहुत से फोरम्स कायम हैं। यहाँ दीनी तालीमात के अलावा समाजी और सकाफती सरगर्मियाँ भी मुनक्कद की जाती हैं। डेनमार्क में मुसलमान रमज़ान, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा को पूरे जोशो खरोश से मनाते हैं। रमज़ान में डेनमार्क के मुसलमान दिन भर रोज़ा रखते हैं। हालांकि गर्मियों में रोज़े 19 से 21 घंटे तक तवील हो सकते हैं। डेनमार्क के बहुत से शहरों में मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार का ख़ास एहतमाम किया जाता है, जहाँ गैर मुस्लिम मुकामी कम्युनिटी और मुस्लिम अफराद भी शरीक होते हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की सुन्नत को याद करते हुए कुर्बानी करते हैं। क्योंकि डेनमार्क में जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद है, इस वजह से मुसलमान या तो गोश्त हॉलैंड, जर्मनी या स्वीडन जैसे करीबी ममालिक से खरीदते हैं, या कुर्बानी के लिए तरक्की पजीर ममालिक में खैराती तंजीमों के जरिए अतिया कर देते हैं। मिलादुन नबी पर डेनमार्क के कई शहरों में जलसे और महफिल नात का एहतमाम किया जाता है। बाज़ औक़ात मुसलमानों के त्योहारों को निशाना बनाया जाता है, जैसे कि ईद के इज्तिमात पर पाबंदी की कोशिशें, कुर्बानी पर आयद पाबंदियाँ और मसाजिद में लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल की महदूद इजाज़त कुछ रुकावटें यहाँ पैदा करती हैं।
بعض मुसलमान मुलाजमतों और तालीमी अदारों में छुट्टी ना मिलने की वजह से ईद जैसे मजहबी त्योहारों में मुकम्मल तौर पर शरीक भी नहीं हो पाते। लेकिन ये मुस्लिम कम्युनिटी मजबूती से अपने दीनी इक़्तिदार को कायम रखे हुए है और इस्लामी त्योहारों को हकीकत खुशी के साथ मनाती है। दुनिया की कोई ताकत इस रोशनी को बुझा नहीं सकती जो दिल में ईमान की सूरत में जलती है। चैलेंजेस हों या आजमाइशें, डेनमार्क के मुसलमान हर हाल में अपने दीन को मजबूती से थामे हुए हैं। यहाँ मसाजिद की अजानें गूंजती हैं, रमज़ान की रौनकें कायम हैं और ईद का चांद मुसलमानों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेरता है। लेकिन यह सिर्फ डेनमार्क की कहानी नहीं, ये हर इस जगह की कहानी है जहाँ इस्लाम मोहब्बत और सब्र के साथ रवान चढ़ता है। ये हर इस मुसलमान की कहानी है जो मुश्किलात के बावजूद अपने दीन पर कायम है। डेनमार्क के मुसलमान साबित कदम हैं, इनके कदमों में लग़ज़िश नहीं, और शायद ये हम सब के लिए एक सबक है कि जहाँ भी हो ईमान की शम्मा को रोशन रखें और ये सफ़र जारी भी रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें।